السلام علیکم ویئرز، آپ دیکھتے ہیں مشرق ڈیجیٹل کا نیوز بلیٹن اور میں ہوں خواجہ آفتاب حسن اور میں ہوں محمد شیوینس۔ ہم اپنے نیوز بلیٹن میں شامل کریں گے لاہور سمیت پاکستان بھر سے خبریں اور رپورٹس۔ دیکھتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز۔ ملک میں پیٹرول کی قیمت میں 6 روپے سے زائد کی کمی کا امکان۔ قصور کا بہادر سپاہی افغان بارڈر پر وطن کی خاطر شہید ہو گیا، سال قبل شادی ہوئی تھی۔ لاہور میں وزیر اعلیٰ مریم نواز کے صحت مند پنجاب ویژن کے تحت پولیو مہم جاری۔ فیسکو میں ترقیوں اور ٹائم سکیل اپ گریڈیشن کے لیے NOC جاری کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کا ممکنہ دورہ خوشاب، ڈپٹی کمشنر فروا عامر کا مختلف علاقوں کا دورہ، صفائی انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر ٹوبا ٹیک سنگھ عمر عباس میلہ کا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کمالیہ کا دورہ۔ کمشنر DG خان اشفاق احمد چودھری کا انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا دورہ، وارڈز کا معائنہ کیا۔ حافظ آباد میں پیر افروز کا شہر بھر میں تجاوزات کے خلاف آپریشن، متعدد دکانیں سیل کر دی۔ DPO خوشاب کی کھلی کچہری، عوامی مسائل سنیں۔ نارنگ منڈی میں تجاوزات کی بھرمار، مرکزی شاہراہوں اور بازاروں سے گزرنا محال ہو گیا۔ ناروال میں پولیس مقابلہ، بدنام زمانہ ڈکیت گینگ کے 2 ارکان مارے گئے۔ فاروق آباد میں ٹریفک حادثہ، موٹر سائیکل سوار جاں بحق۔ فیصل آباد پولیس کی سالانہ کارکردگی کی رپورٹ جاری کر دی گئی۔ فیصل آباد میں فوڈ اتھارٹی کی مضر صحت اور ملاوٹی اشیاء کے خلاف کارروائی، لاکھوں کے جرمانے عائد۔ بھارت میں باؤلر اپنی ٹیم کو میچ جتوانے کے بعد پچ پر ہی چل بسا۔ اور بالی ووڈ سٹار ابھیشیک بچن نے 25 سالہ کیریئر میں پہلی بار بہترین اداکار کا فلم فیئر ایوارڈ جیت لیا۔ اب بڑھتے ہیں ان خبروں کی تفصیل کی جانب، لیکن اس سے پہلے ایک بریک۔ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ ہم ہیں آپ کی آواز، ہم پہنچائیں گے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر خبر آپ تک۔ ہم کریں گے حالات حاضرہ کا بے خوف تجزیہ اور رکھیں گے آپ کو آپ کے ارد گرد کی ہر خبر سے باخبر۔ سب سے پہلے یہ ہے مشرق ڈیجیٹل، جہاں صحافت صرف صحافت نہیں، ایک مشن ہے۔ آج ہی مشرق ڈیجیٹل کی ٹیم کا حصہ بنے۔ صحافت کی آزادی اور وقار کے لیے، عزت، شہرت اور پہچان کے لیے، نمائندگی کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ ملک میں آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرول کی قیمت میں بڑی کمی کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق 16 اکتوبر سے پیٹرول کی قیمت میں 6 روپے 10 پیسے فی لیٹر اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 97 پیسے فی لیٹر کمی کا امکان ہے۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں 2 روپے 75 پیسے فی لیٹر اور لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں 1 روپے 64 پیسے فی لیٹر کمی کا امکان ہے۔ پیٹرولیم انڈسٹری نے اپنی ورکنگ مکمل کر کے اوگرا کو بھجوا دی۔ اوگرا پیٹرولیم مصنوعات میں رد و بدل کی سمری پیٹرولیم ڈویژن کے ذریعے وزارت خزانہ کو ارسال کرے گی۔ وزارت خزانہ وزیر اعظم سے مشاورت کے بعد کل پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کی حتمی منظوری دے گی۔ قصور کا بہادر سپاہی افغان بارڈر پر وطن کی خاطر شہید ہو گیا۔ دشمن سے لڑتے ہوئے پاک فوج کے حوالدار محمد ارشد نے جام شہادت نوش کیا۔ مشرق ڈیجیٹل کے نمائندے عامر سہیل کی رپورٹ کے مطابق شہید ارشد کا تعلق قصور کے نوائی علاقے چا بلندے والا رکن پورہ سے تھا۔ شہید ارشد کی 1 سال قبل شادی ہوئی تھی۔ شہید کا جسد خاکی پورے اعزاز کے ساتھ قصور پہنچایا گیا، جہاں نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ اطلاع ملتے ہی اہل علاقہ کا شہید کے گھر تعزیت کے لیے تانتا بند گیا۔ پاک فوج کے افسران اور سول انتظامیہ کی جانب سے شہید کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے صحت مند پنجاب ویژن کے تحت پولیو مہم جاری ہے۔ 7 روزہ انسداد پولیو مہم 19 اکتوبر تک تمام 274 یونین کونسلز میں جاری رہے گی۔ DDHO ہیلتھ شالیمار ٹاؤن ڈاکٹر نوید اختر نے شالیمار ٹاؤن میں بچے کو قطرے پلا کر مہم کا باقاعدہ آغاز کیا۔ مزید جانتے ہیں مشرق ڈیجیٹل کے محمد اظہر مشتاق سے۔ جی اظہر۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے صحت مند پنجاب ویژن کے تحت پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ DDHO ہیلتھ شالیمار ٹاؤن ڈاکٹر نوید اختر نے شالیمار ٹاؤن میں بچے کو قطرے پلا کر مہم کا باقاعدہ آغاز کیا۔ لاہور میں 7 روزہ انسداد پولیو مہم میں 22 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ مہم 13 اکتوبر سے 19 اکتوبر تک تمام یونین کونسلز میں جاری رہے گی۔ DDHO ہیلتھ شالیمار ٹاؤن ڈاکٹر نوید اختر نے یونین کونسل 17 میں دورہ کیا اور پولیو ٹیموں کی کارکردگی اور پولیو کیمپ کا بھی جائزہ لیا۔ DDHO ہیلتھ شالیمار ٹاؤن ڈاکٹر نوید اختر کا اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا، لاہور میں 7 روزہ انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو گیا ہے۔ شالیمار ٹاؤن میں پولیو کی ٹیمیں اور پولیو کے لگائے جانے والے کیمپوں میں موجود ورکرز اپنی ڈیوٹی کو ایمانداری سے نبھانے میں مصروف ہیں۔ پولیو ٹیموں کو ہدایات جاری کی گئی کہ کوئی بھی گھر پولیو ویکسین کے بغیر نہ رہنے پائے، سختی سے عمل درآمد کیا جائے اور انکاری والے والدین کو قائل کرنے کے لیے یونین کونسل میں موجود میڈیکل افسرز کو اطلاع دی جائے اور پولیو کا خاتمہ ہماری اولین قومی ذمہ داری ہے۔ ہر بچے کو پولیو سے بچانا ہمارا عزم ہے۔ مزید ان کا کہنا تھا، والدین اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلوائیں۔ UCMOs کا
किरदार पोलियो मुहिम में कलीदी हैसियत रखता है और शहरियों के ताउन से ही लाहौर को पोलियो फ्री बनाया जा सकता है और वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो के 2 कतरे हर माह हर बार ज़रूर पिलवाएं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजहर मुश्ताक, मशरिक डिजिटल, लाहौर। फेस्को में तरक्कियों और टाइम स्केल अपग्रेडेशन के अमल में अहम पेशरफ्त हुई है। प्रमोशंस और टाइम स्केल अपग्रेडेशन के लिए NOC जारी कर दिया गया। फैसलाबाद से शबीर आज़ाद की रिपोर्ट के मुताबिक वजारत तवानाई ने फेस्को के लिए NOC से मुतल्लिक़ ख़त जारी कर दिया है। फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और इंतज़ामिया को SOE एक्ट 2023 के तहत फैसले का इख्तियार हासिल है। पावर डिवीजन ने फेस्को की NOC दरख्वास्त मज़ीद कार्रवाई के लिए आगे भेज दी है। वज़ीर आला मरियम नवाज की खुशाब आमद के पेश नज़र डिप्टी कमिश्नर फरवा आमिर का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, खुशाब जोहराबाद समेत मुख्तलिफ एरियाज में सफाई इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज की खुशाब आमद के पेश नज़र डिप्टी कमिश्नर फरवा आमिर का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, खुशाब व जोहराबाद समेत मुख्तलिफ एरियाज में सफाई इंतजामात का जायजा लिया। खुशाब से हुसनैन शाह की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर फरवा आमिर के दौरे के मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी ज़ियाउल्लाह, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पॉपुलेशन मोहम्मद शाहिद, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज सुथरा पंजाब MC व दीगर महकमों के अफसरान मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर खुशाब ने ज़िला कौंसल जोहराबाद के अकब में खड़े पानी का नोटिस लिया और सुथरा पंजाब और MC के अफसरान को हदायत की कि पानी की फौरी निकासी के लिए इक़दाम किए जाएँ। सड़क किनारे मौजूद जड़ी बूटियों और झाड़ियों का मुकम्मल खात्मा किया जाए। फरवा आमिर ने CMC सुंदर सराबेल को सेटेलाइट टाउन में मेन रोड पर वाक़या खस्ता हाल चुंगी जात गिराने की हदायत जारी की। डिप्टी कमिश्नर ने सब्जी व फ्रूट मंडी के आसपास व दीगर एरियाज में सफाई इंतजाम का भी जायजा लिया। फरवा आमिर ने DHQ हस्पताल जोहराबाद में 5 साल से कम उम्र के बच्चे को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाकर बाकायदा मुहिम का आगाज़ भी किया। ज़िला खुशाब में पोलियो मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र के 2,38,000 बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर टोबाटेक सिंह उमर अब्बास मेला का तहसील हेडक्वार्टर कमालिया का तफसीली दौरा, एमरजेंसी डायलिसिस, पेड हेड्रिक वार्ड, ऑपरेशन थिएटर, फार्मेसी और लेबॉर्ट्री का मुआयना किया। कमालिया से नजमुल हसन बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर के हमरा असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया इकरा नासिर और MS डॉक्टर अदील आरिफ भी मौजूद थे। MS डॉक्टर अदील आरिफ की जानिब से अस्पताल के तमाम शोबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। डिप्टी कमिश्नर ने मरीजों से मुलाकात की और फराम करदा सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। उमर अब्बास मेला ने अद्वियात की दस्तयाबी, सफाई के इंतजामात और अमले की हाजिरी का तफसीली जायजा लिया। एमरजेंसी वार्ड में अमले की कारकर्दगी और मरीजों के रिकॉर्ड का मुआयना भी किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर उमर अब्बास का कहना था, आवाम को मियारी इलाज मुआवजे की फराहमी हुकूमत पंजाब की अवलीन तरजीह है। मरीजों को बर वक्त इलाज की फराहमी में गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने MS को हदायत की कि तमाम शोबों में नज़्म ज़ब्त और सफाई को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। अब चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, देखते रहिए मशरिक डिजिटल। मशरक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। हम हैं आपकी आवाज़, हम पहुंचाएंगे पाकिस्तान और दुनिया भर की हर खबर आप तक हम करेंगे हालात हाजरा का बेखौफ तज्जिया और रखेंगे आपको आपके इर्द गिर्द की हर खबर से बाखबर। सबसे पहले ये है मशरिक डिजिटल, जहां सहाफत सिर्फ सहाफत नहीं, एक मिशन है। आज ही मशरिक डिजिटल की टीम का हिस्सा बने। सहाफत की आज़ादी और वकार के लिए, इज्जत, शोहरत और पहचान के लिए, नुमाइंदगी के लिए अभी राब्ता करें। वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल, जहां खबर शामिल करते हैं DG खान से, जहां कमिश्नर इशफाक अहमद चौधरी ने इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा किया, मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया, मरीजों की इयादत की, मरीजों को दी जाने वाली सहूलियत के मेयार का तफसीली जायजा भी लिया। DG खान से इमरान नज़ीर की रिपोर्ट के मुताबिक DMS डॉक्टर एमन और दीगर हुक्काम भी कमिश्नर के हमरा मौजूद थे। कमिश्नर ने हदायत की कि मरीजों की खिदमत में कोई कमी न आने दी जाए, हर मरीज को बिला तफरीक बेहतरीन इलाज के लिए सहूलियात फराहम की जाएँ। कमिश्नर इशफाक अहमद ने अस्पताल की सफाई, मशीनरी और अद्वियात की दस्तयाबी का भी जायजा लिया। पीरा फोर्स हाफजाबाद का शहर भर में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन, मुतअद्दिद दुकानें सील कर दी। मशरिक डिजिटल के नुमाइंदे बिलाल मुनीर तारड़ की रिपोर्ट के मुताबिक SDO पीरा फोर्स हाफजाबाद की हदायत पर तजावजात के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन दुकानदारों के खिलाफ एक्शन लिया गया जिन्हें बार बार मना करने और नोटिस देने के बावजूद भी वो बाज न आए। तजावजात के सबब बनने वाली इन दुकानों को सील कर दिया गया है। SDO पीरा फोर्स ने कहा, शहर में किसी भी किस्म की तजावजात बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। ताजरों को मुतअद्दिद बार नोटिस और हदायत जारी की गई, मगर अमल न करने पर कार्रवाई अमल में लाई गई।
खुशाब से एक और खबर बुलेटिन में शामिल करते हैं। डीपीओ खुशाब डॉक्टर अमारा शिराजी ने खुली कचहरी का इनेकाद किया, अवामी मसाइल व शिकायत सुनी और मौके पर ही हल के अहकाम जारी किए। डीपीओ डॉक्टर अमारा ने मुतलका पुलिस अफसरान को टेलीफोन करके मसाइल के मुतालिक आगाही ली और टाइम फ्रेम के मुताबिक हल करने के अहकाम सादिर किए। नारंग मंडी में तजावजात की भरमार, मरकजी शाहराहों और बाजारों से गुजरना मुश्किल हो गया। पीरा फोर्स भी नाकाम, इंतजामिया खामोश, तमाशाई, शहरियों का नोटिस लेने का मुतालबा। मशरक डिजिटल के नुमाइंदे मोहम्मद साहिब मियों की रिपोर्ट के मुताबिक नारंग शहर की मरकजी शाहराहों पर कब्जा माफिया ने कब्जा जमा रखा है। गैर कानूनी स्टैंडर्ड्स बन चुके हैं जिनसे गुजरने वालों को शदीद परेशानी का सामना है। शहरी कई घंटे ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। खुरम गुलफाम पार्क के इर्द गिर्द रिक्शा और बस स्टैंड ने गैर कानूनी तरीके से सड़क पर कब्जा जमा लिया है। कब्जा माफिया की वजह से मजीद मसाइल भी पैदा हो रहे हैं। स्कूल और कॉलेज जाने वाले तलबा और तालिबात भी शदीद अजियत में मुब्तला हैं। अहले इलाका ने असिस्टेंट कमिश्नर तौसीफ हसन से नोटिस लेने का मुतालबा किया है कि तजावजात के खिलाफ मुअस्सर ऑपरेशन करके रेल बाज़ार, सदर बाज़ार, रेलवे रोड, खुरम गुलफाम पार्क रोड समेत मरकजी शाहराहों को कब्जा माफिया के चुंगल से फौरी आज़ाद करवाया जाए। सीसीडी नारोवाल की कार्रवाई में बदनाम ज़माना डकैत गैंग के 2 भाई मारे गए, 2 साथी फरार होने में कामयाब हो गए। मशरक डिजिटल के तारिक इसहाक की रिपोर्ट के मुताबिक जफरवाल शकरगढ़ के इलाका दीनपुर में सीसीडी के साथ मुबैना मुकाबले में बदनाम ज़माना डकैत गैंग के 2 सगे भाई आसिफ और आजम उर्फ मोहसिन सिकंदर जंडियाला मारे गए, जबकि 2 साथी फरार हो गए। मारे गए डाकुओं पर मुख्तलिफ थानों में दर्जनों डकैती और राहज़नी के मुकदमात दर्ज थे। सीसीडी के सब इंस्पेक्टर रिजवान हमीद पुलिस एहलकारों के हमरा मामूल के गश्त पर थे। दीनपुर कब्रिस्तान के करीब फायरिंग का तबादला हुआ। दोनों डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हुए, हस्पताल मुंतकिल करने के दौरान दम तोड़ गए। बुलेटिन में फरुखाबाद से खबर शामिल करते हैं, जहां ट्रैफिक हादसे में एक मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। मशरक डिजिटल के हशाम अली की रिपोर्ट के मुताबिक हादसा माची के सरगोदा रोड शेखुपुरा में पेश आया, जहां 2 मोटरसाइकिल आपस में टकरा गए। 38 साला एजाज मौके पर ही जाँ बहक हो गया। सीपीओ फैसलाबाद साहबजादा बिलाल उमर की ज़ेर क़यादत रवां साल पुलिस की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर देगी। फैसलाबाद से शबीर आज़ाद की रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल स्ट्रीट क्राइम और संगीन मुकदमात के 11,000 से ज़ायद मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। डकैती, राबरी और कत्ल के 36 मुलजमान गिरफ्तार करके जेल भिजवाए गए। डकैती के 129 मुलजमान गिरफ्तार हुए। दौरान राजनी जख्मी करने वाले 141 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने रवां साल 274 गैंग्स के 714 मुलजमान को गिरफ्तार करके उनसे भारी मिकदार में माले मसरूका और दीगर सामान बरामद कर लिया। गैंग्स और मुलजमान से 94 करोड़ 80 लाख से ज्यादा का सामान भी बरामद किया गया। फैसलाबाद से एक और खबर बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां फूड अथॉरिटी पंजाब की जानिब से मुज़र सेहत और मिलावटी अशिया के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई। मरूफ घी यूनिट को 5 लाख और 2 मैरिज हाउस को 1 लाख जुर्माना किया गया। गुलाम मोहम्मद आबाद में गैर कानूनी मीट स्टोरेज पर छापे के दौरान 400 किलो गोश्त तल्फ करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दौरान कार्रवाई एक मुलजम को हिरासत में भी ले लिया गया। खेलों की दुनिया से एक अफसोसनाक खबर बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां दौरान मैच बाउलर अपनी टीम को मैच जितवाने के बाद पिच पर ही चल बसा। ओवर की आखिरी गेंद कराने के फौरन बाद अहमद खान अचानक पिच पर गिर गए। भारत में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां एक मुकामी क्रिकेटर अपनी टीम को मैच जितवाने के बाद मुबैना तौर पर दिल का दौरा पड़ने से चल बसा। भारतीय मीडिया के मुताबिक उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद में क्रिकेट टूर्नामेंट में एक सीनियर बॉलर मैच जितवाने के फौरन बाद मैदान में ही गिरा और अपनी जान से हाथ धो बैठा। ये वाकया इतवार को पेश आया, जहां उत्तर प्रदेश वेटरन्स क्रिकेट एसोसिएशन के ज़ेरे तमाम मुरादाबाद और संभल की टीमों के दरमियान मैच जारी था। मुरादाबाद के खिलाफ संभल की टीम को मैच जीतने के लिए आखिरी 4 गेंदों पर 14 रन दरकार थे। इस मौके पर मुरादाबाद के सीनियर लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर अहमद खान ने शानदार आखिरी ओवर किया और अपनी टीम को 11 रन से फतह दिलाई। ताहम ओवर की आखिरी गेंद कराने के फौरन बाद अहमद खान अचानक पिच पर गिर गए। एनी शाहिदीन के मुताबिक अहमद खान की सांस फूलने लगी और वो पिच पर ही बेहोश होकर गिर पड़े। बुलेटिन में एंटरटेनमेंट की खबर शामिल करते हैं, जहां पर बॉलीवुड स्टार अभिषेक बच्चन ने 25 साल कैरियर में पहली बार बेहतरीन अदाकार का फिल्म फेयर अवार्ड जीत लिया। अभिषेक बच्चन को ये अवार्ड 2024 की फिल्म आई वांट टू टॉक में शानदार अदाकारी पर दिया गया। मीडिया के मुताबिक 17वें फिल्म फेयर अवार्ड्स की तकरीब में अभिषेक बच्चन ने बेहतरीन अदाकार का अवार्ड अपने नाम किया। कैरियर में पहली बार बेहतरीन अदाकार का फिल्म फेयर अवार्ड हासिल करने के मौके पर अभिषेक बच्चन जज्बाती नजर आए। स्टेज पर आकर अदाकार ने अपने ख़ानदान, ख़ास तौर पर अपनी एहलिया ऐश्वर्या राय बच्चन, बेटी और वालिदैन का शुक्रिया अदा किया। अभिषेक ने कहा, इस साल मेरे फिल्मी सफ़र के 25 साल मुकम्मल हो गए हैं और मुझे याद नहीं कितनी बार मैंने ये अवार्ड जीतने की तकरीब की तैयारी की थी। ये हमेशा मेरा ख्वाब रहा है।
میں ہمیشہ خوش اور شکر گزار ہوں کہ یہ ایوارڈ مجھے اپنی فیملی کے سامنے ملا. یہ لمحہ میرے لیے بے حد خاص ہے. ابھیشیک نے فلم انڈسٹری کے اپنے ساتھیوں، ہدایت کاروں اور پروڈیوسرز کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے ان پر اعتماد کیا اور موقع فراہم کیا. ابھیشیک بچن نے 2000 میں فلم ریفیوجی سے بالی ووڈ ڈیبیو کیا تھا. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل.